Namaste, everybody. How are you? I think you will be above the moon and studying hard at your homes. We are reading, we are preparing the poem My Last Duchess, which flows from the pen of Robert Browning. It is a dramatic monologue, you know it. Uh, we have been reading this poem for some days. You know that the envoy of Count comes with the wedding proposal to the Duke Alfonso II, whose wife he gets murdered. Due to her simplicity and simple nature, simple behavior. In the gallery, both Duke and Messenger are talking or discussing wedding proposal. And Duke is telling some reason why he gets murdered, her late wife. Duke tells him about the portrait. He unveils the portrait and show the qualities of picture, which is so vivid and so lively as if she were alive in the picture. The Duke tells the reason of his indignation, anger, hate to the envoy. He tells some qualities of her late wife which annoys him. We are reading this poem, and in our previous class we have read, our last line was, who would stoop to blame this sort of trifling? Who would stoop? The Duke says that I can tell her, I can inform her about her faults, but that is below my dignity. Why should I surrender in front of her, and why should I tell her about her faults? यहां तक हम पढ़ चुके हैं. अब उससे आगे की जो पोएम है वो आज करेंगे, और संभावना ये है कि कल, आई थिंक सो, इन माय नेक्स्ट क्लास ये पोएम एक बार पढ़ ली जाएगी, फिर इसके एक्सप्लेनेशन वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे. देखिए, आवर नेक्स्ट लाइन्स आर, even had you still in speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that, and you disgust me. Here you miss or there exceed the mark, and if she let herself be lessened so, nor plainly set her weights to yours, forsooth, and made excuse, even then would be some stooping, and choose never to stoop.
These are our lines. देखो इससे पहले हमने पढ़ा था who would stoop to blame this sort of tripling even had you skill, कि कौन झुकेगा उसके सामने इस तुच्छ कार्य के लिए। उससे आगे देखिए even had you skill, यदि तुममें स्किल है, स्किल इन स्पीच, पावर टू टॉक इम्प्रेसिवली, इट्स मीनिंग यहां से लेकर यहां तक का मीनिंग है पावर टू टॉक इम्प्रेसिवली। इवन हैड यू स्किल, अगर तुम्हारे अंदर स्किल है, क्षमता है बात करने की, विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर नहीं है। देखो यहां पर ड्यूक झूठ बोल रहा है, कितनी घुमा फिरा के बातें कर रहा है, एक फिलोसफर की तरह बातें कर रहा है। और क्या कह रहा है? विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर नहीं है। This poem shows, this dramatic monologue shows that Duke has the gift of gab, but here he denies it, that I don't have the power to talk impressively. अगर तुम्हारे अंदर बात करने की क्षमता है, which I have not, जो मेरे अंदर नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर बात करने की क्षमता है, which I have not, जो मेरे अंदर नहीं है, to make your will quite clear to such an one, to make your will। देखो इसमें ज्यादा कठिन वर्ड्स नहीं है, बस इसके भाव को समझना होगा हमें। सीधा मीनिंग समझना भी थोड़ा मुश्किल होगा, हम इसके भाव को समझने की कोशिश करेंगे। Even had you skill in speech, अगर तुम्हारे अंदर बोलने की क्षमता है, which I have not, जो मेरे अंदर तो नहीं है। ड्यूक कह रहा है किससे? मैसेंजर से, कि भाई मेरे अंदर तो ये क्षमता है नहीं है, तुम्हारे अंदर अगर क्षमता है बोलने की, to make your will quite clear to such an one, ऐसे तथ्यों पर अपने विचार रखने की, क्या सही है क्या गलत है, अगर तुम्हारे अंदर क्वाइट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, अपरेंट, अगर तुम्हारे अंदर स्पष्ट ऐसे तथ्यों पर बात करने की कोई बुद्धि है या बात करने का तरीका है, तो तुम बताओ ऐसे विचारों पर। आगे देखिए, एंड से, और फिर कहता है जस्ट दिस और दैट इन यू डिसगस्ट मी, बहुत गहरा भाव है। जस्ट दिस और दैट, ये और वो, अर्थात उसका ये काम, उसका वो काम, उसके व्यवहार में ये, उसके व्यवहार में ये। जस्ट दिस और दैट, ये और वो, एंड यू डिसगस्ट मी, मुझे डिसगस्ट मीन्स loath, abhor, hate, increases hate, disgust me, just this or that, ये और वो, just this or that, ये और वो, and you disgust me, मेरे डिसगस्ट को, घृणा को बढ़ाता है। हेयर यू मिस, हेयर यू मिस, कहां तुम्हें मिस करना है, इस लाइन को ध्यान से समझें। हेयर यू मिस, कहां चीज को छोड़ना है, हेयर यू मिस, हेयर यू मिस, कहां छोड़ना है,
और देयर एक्सीड द मार्क, और कहां किसी तथ्य पर जोर देना है। इसको समझो थोड़ा सा। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, अर्थात एक अर्थ, इसको दो बार में समझने की कोशिश करेंगे हम। हियर यू मिस, ये कार्य तो तुमने छोड़ दिया जो करना था। कहां तो मिस करना है, और देयर एक्सीड द मार्क, और कहां तुमने हद पार कर दी। अर्थात हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कहां तो तुमने मिस कर दिया चीज को, उस तथ्य को छोड़ दिया, और देयर एक्सीड द मार्क, और कहीं कहीं तुमने हद ही पार कर दी। अर्थात क्या कहना चाहता है कवि? कवि कहना चाहता है कि जो डचेज है उसे जानना चाहिए कि किसका सम्मान तो नहीं करना है, किसको महत्व नहीं देना है, और किसको महत्व देना है, और एक्सीड द मार्क, किसको बहुत ज्यादा महत्व देना है, किसको बहुत ज्यादा सम्मान देना है। ये अंतर उसको आना चाहिए। एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड, अगर वो इससे सबक ले भी लेती, एंड इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन्ड, अगर वो सबक ले भी लेती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, if she let herself be lessoned so, nor plainly set her wits to yours, forsooth and made excuse, even then would be some stooping, and I choose never to stoop. And if she let herself be lessoned, अगर वो इन बातों को बताने पर, if she let herself be lessoned, अगर वो एक सबक सीख भी लेती, lessoned, tutored, and if she let herself be lessoned, अगर वो इससे कोई सबक सीख भी लेती, nor plainly set her wits to yours, और मेरे कहने पर अपने तौर तरीके बदल भी लेती, अपने मस्तिष्क में उनको बिठा लेती, अपने तौर तरीकों को परिवर्तित कर लेती। फोरसूद का मतलब होता है ट्रुथ और इंडीड, वास्तव में। अगर वास्तव में वो जो ड्यूक है वो उससे कहता है कि अगर मैं उसे बता भी देता, मैंने उसे कुछ बताया नहीं, उसे मैंने ये नहीं बताया कि कैसे व्यवहार करना है, कहाँ एक्सीड करना है, कहाँ मिस करना है, अगर मैं उसे बता भी देता तो क्या होता? इफ शी लेट हरसेल्फ बी लेसन, बताने से भी क्या होता? यदि वो उससे कोई सबक भी ले लेती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स, और मेरे हिसाब से अपने मस्तिष्क को, अपने विचारों को परिवर्तित भी कर लेती, अर्थात वो ये भी सीख जाती कि कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या नहीं करना है, किसको कितनी तवज्जो देनी है, किसको कितनी तवज्जो नहीं देनी है। अगर वो ये सीख भी जाती, मान लो वो सीख भी जाती, तो वास्तव में यदि वो ऐसा सीख भी जाती एंड मेड एक्सक्यूज, और इसके लिए वो मुझसे माफी मांगती, एंड मेड एक्सक्यूज, और इसके लिए वो मुझसे माफी मांगती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग। देखो इस लाइन में उसका ईगो दिखता है। इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, फिर भी उसके माफी मांगने पर भी क्या होता? इवन देन, फिर भी वुड बी सम स्टूपिंग, थोड़ा सा झुकना होता,
वो माफी मांग लेती, ठीक है, फिर भी उसके सामने थोड़ा सा झुकना होता, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं कभी झुकने को नहीं चुनता, अर्थात मैं उसके सामने कभी नहीं झुकता। ये जो लाइन है, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग एंड आई चूज नेवर टू स्टॉप, ये उसके उच्च कुलीन ब्लू ब्लड होने की जो एरोगेंस है, जो प्राउड है, जो प्राइड है उसका, और उसका जो ईगो है, उसको शो करता है। फिर से देख ले एक बार, इवन हैड यू स्किल इन स्पीच, अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि है बात करने की, विच आई हैव नॉट, जो मेरे अंदर नहीं है, टू मेक योर विल क्वाइट क्लियर टू सच एन वन, ऐसे मामलों पर अपने विचार स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की, एंड से जस्ट दिस और दैट इन यू डिस्गस्ट मी, और ये कहने की कि ये तुम्हारा ये कार्य, तुम्हारा वो कार्य मुझे नाराज करता है, मुझे घृणा पैदा करता है मेरे अंदर। हियर यू मिस और देयर एक्सीड द मार्क, कहाँ तुम्हें चीजों को छोड़ना है, कहाँ किसको ज्यादा तवज्जो देनी है, कहाँ तुम हद पार कर गई हो और कहाँ तुमने चीजें छोड़ दी हैं। एंड इफ सी लेट हरसेल्फ बी लेसन सो, और अगर इससे वो कोई सबक ले भी लेती, नॉर प्लेनली सेट हर विट्स टू योर्स फोरसूद, और वास्तव में अगर वो अपनी मस्तिष्क को मेरे हिसाब से भी ढाल लेती, मेरे हिसाब से अगर इन चीजों को वो ढाल लेती, एंड मेड एक्सक्यूजेस इवन देन, और अगर वो कोई एक्सक्यूज करती, आई मीन टू से अगर कोई माफी भी मांगती, इवन देन वुड बी सम स्टूपिंग, तो भी उसके सामने मेरा झुकना होता, एंड आई चूज नेवर टू स्टूप, और मैं कभी झुकना पसंद नहीं करता। देखो, when they are discussing wedding proposal, the Duke says to the envoy that if you have the gift of gave is an idiom, it means power to talk impressively। गिफ्ट ऑफ गिव का मतलब होता है बात करने का, बहुत से लोग वो जो बात करने की जो कला होती है उसको गिफ्ट ऑफ गिव कहते हैं इंग्लिश में। सो हैविंग द गिफ्ट ऑफ गिव, द ड्यूक taunts the envoy that I don't have the power to talk impressively, but if you have the power to talk impressively, you should make your point of view on such and such matters crystal clear. He says that if you have wit, you must express your opinion, your views on such matters. I don't have here. He tells a lie. Sorry, here the Duke tells a lie that he does not have the power to talk impressively, because through the poem we come to know that the power of talking he has is quite impressive. But here he tells a lie, and he says further, he says that if I want, I can tell her the way she should behave, but I didn't do so. I didn't tell her that I didn't tell her to do the behavior with others in different situations, and whatever she does, this or that, increases my hate, my anger, my indignation.
If I want, I can tell her about this behavior, but I did not choose to tell her. If I tell her the way she should behave to others and she should discriminate others and me, it may be, maybe she can get lesson and she may be changed herself, but that will be a mean work for me. She may excuse me, but this kind of excuse will be the surrender of my dignity, my pride, and if she excuse me, I will not excuse her, because excusing her, forgiving her, because forgiving her is also a type of surrender, and I will never choose the surrender in front of my wife. It is mean, it is below my dignity, and I never can leave my dignity and my pride. That is our today's class. ये हमारा एक्सप्लेनेशन है आज के लिए. इसके आई थिंक सो कि कल जो ये पोएम है अपनी हिंदी अनुवाद को पूरा कर लेगी, उसके बाद इसके जो आगे की चीज़ें हैं उनको देखेंगे. आप इसे 1-2 बार देख लेना, उससे आपको बेहतर समझ में आएगी. तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक्स.